Welcome back once again to the content number 3 of our chapter 5, that is continuity and differentiability. Okay, so in the previous classes we have already discussed about the chain rule, product rule, quotient rule. So by using the chain rule, how can we calculate the derivative of a particular function? Okay, so now in the content number 3, from content number 3, in content number 3 we will discuss some derivative of some other functions. Okay, so today's topic is derivative of implicate functions. Okay, what is implicate function? So there are two type of function. One is implicate function, one is explicit function. Okay, so implicit and explicit, what is the difference between implicit function and explicit function? So first, coming back to the our topic is about the derivative of implicit function. Okay, so what is actually explicit function? So explicit function means like x minus y minus pi is equal to 0, then y equal to x minus phi. Okay, so here y is the dependent variable and x is the independent variable. So by changing the value of x, the value of y will be changed. Like suppose मैंने 1 पुट किया, y चेंज हो जाएगा 2 3 x में हम इंडिपेंडेंटली कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो y इज डिपेंडेंट अपॉन x. सो यहाँ पे पर्टिकुलरली y को हम एक x के फॉर्मेट में लिख दिए या फिर हम x को एक y के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. ठीक है, वैसा टाइप का फंक्शन जहाँ पे कि हम एक पर्टिकुलर फंक्शन को और एक फंक्शन के ऊपर में डिपेंडेंट होकर लिख सकते हैं, दैट टाइप ऑफ फंक्शंस आर सेड टू बी एक्सप्लिसिट फंक्शंस. ओके, देन व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लिसिट फंक्शन? द अदर फंक्शन, लाइक जहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी, वहाँ पे वो टाइप का फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं. लाइक यहाँ पे देखो x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई, तो यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल हम नहीं कह सकते. ना तो हम x को y के फॉर्मेट में रख सकते हैं, ना तो हम y को x के फॉर्मेट में. जहाँ पे भी रखेंगे यहाँ पे साइन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, जहाँ पे कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते. साइन ऑफ एक्स वाई वो एक ही टर्म आ जाएगा, जहाँ पे कि हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हम y का वैल्यू चेंज करेंगे तो टोटल का वैल्यू वही के अनुसार चेंज होगा, x का भी. तो यहाँ पे हम डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं कह सकते ये फंक्शंस के लिए. सो दोज टाइप ऑफ फंक्शंस आर सेड टू बी इम्प्लिसिट फंक्शंस. So our topic is about the derivative of those function, they are said to be implicit function. So coming back to the example number 1, very simple concept is there. So find dy by dx if x minus y equal to pi. So given x minus y equal to pi, तो पहले either y के फॉर्मेट में लिख देंगे या फिर since we are differentiating with respect to x, तो पहले y के फॉर्मेट में हमेशा रख देंगे. तो y equal to x minus pi obviously. So differentiating with respect to x we have, so differentiating with respect to x we have dy by dx. तो दोनों साइड में करेंगे, तो पहले यहाँ पे करेंगे तो dy by dx equal to derivative of x minus pi, that is d of x minus pi by dx. So dy by dx will be given by dy by dx and sorry, so यहाँ पे डायरेक्टली हम सेपरेट कर देंगे माइनस है, तो dx by dx माइनस d pi by dx. तो dx by dx obviously 1 and d pi by, that is since it is a constant function it will become 1 minus 0, तो dy by dx will become how much? 1, and that will be the answer. Very simple concepts are there. यहाँ पे कहीं पे चेन रूल भी अप्लाई हम करेंगे, तो देखेंगे हम कहाँ पे करेंगे. तो फाइंड dy by dx if y plus sin y equal to cos x. तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो इम्प्लिसिट फंक्शन. सो गिवन y plus sin y equal to cos x, तो y के फॉर्मेट में लिख देते हैं y equal to cos x minus sin y. ओके, सो डिफरेंशिएट with respect to x we have dy by dx equal to, तो दोनों साइड में डेरिवेटिव पुट कर देते हैं, d cos x by dx माइनस d sin y बाई dx. तो नहीं कर सकते सिंस y इज देयर, मतलब यहाँ पे y चेन रूल पुट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे सिंस y इज देयर तो dy इंटू dy by dx. ओके, तो डेरिवेटिव dy by dx इक्वल टू cos x का हो गया माइनस sin x माइनस sin y का हो गया cos y. यहाँ पे cos x लिख देंगे गलत हो गया, sin y के फॉर्मेट में, तो cos y इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy by dx. अभी हमको dy by dx निकालना है, तो यहाँ पे एक टर्म आ गया dy by dx, यहाँ पे थर्ड टर्म आ गया dy by dx. इसको पास में ले आते हैं तो ये माइनस इधर आने से प्लस हो जाएगा, और dy by dx मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस cos y इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin x. तो dy by dx विल बी गिवन बाय माइनस ऑफ sin x, ये डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस cos x, एंड दैट विल बी द आंसर. वेरी सिंपल, जस्ट उसको फंक्शन को रखेंगे, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देंगे, dy by dx को लेफ्ट साइड में ले आएंगे और राइट साइड में जो भी आंसर निकलेगा दैट विल बी द आंसर. ओके, सो दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. नाउ कमिंग बैक टू the derivative of inverse trigonometry function. So these are the inverse trigonometry function we already have studied in chapter 2, that is sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x and cosec inverse x. So how can we determine the derivative of that particular functions? Like these are the formulas actually. Sin inverse x का derivative 1 by 1 minus x square, cos inverse x का minus 1 by 1 minus x square, tan inverse x का 1 by 1 plus x square, cot inverse x का minus 1 by 1 plus x square, sec inverse x का 1 by
मोड ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का रूट ओवर, यहाँ पे कॉसेक इनवर्स है बस एक नेगेटिव, मतलब माइनस वन बाई एक्स मोड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन का रूट ओवर, ठीक है। सो दीज आर द फॉर्मूलाज। तो कैसे हम इसको डिराइव भी करेंगे, मैं एक साइन इनवर्स एक्स का करके आप लोग को दिखा देता हूँ, वैसी तरह विल यू कैन प्रूव द अदर फंक्शंस ऑल्सो, ओके। तो पहला पार्ट में साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो let y equal to sin inverse x, then sin inverse sin y will be how much, x, तो sin y equal to x, okay. So now sin y equal to x के फॉर्मेट में आ गया। So now differentiate with respect to x we have, तो derivative of sin y is equal to derivative of x, तो derivative sin y के फॉर्मेट में यहाँ पे वेरिएबल y आ गया, तो d चेन रूल, तो d sin y by dy मल्टीप्लाइड by dy by dx, और डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 1, तो साइन y का डेरिवेटिव दैट इज cos y, दैट cos y इनटू डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू 1, दैट dy by dx विल बी 1 by cos y। तो फ्रॉम सो cos y विल बी रिप्रेजेंटेड एज 1 माइनस साइन स्क्वायर y का रूट ओवर, जैसे हमने कर सकते हैं cos y मतलब cos y का cos स्क्वायर y का रूट ओवर, cos स्क्वायर y की जगह हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर y का रूट ओवर, तो 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर y का रूट ओवर। तो एज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 साइन y इक्वल टू x, तो इन प्लेस ऑफ साइन y विल पुट x, so it will be given by 1 by 1 minus x square, so dy by dx equal to 1 by 1 minus x square, that is the formula of sin inverse x. So in the same way we will prove the other trigonometric inverse trigonometric functions also, similarly we can prove the other functions also, ठीक है। So these are the 6 formulas of the inverse trigonometric function that we have to remember, okay. So now coming back to directly the exercise 5.3, okay, to find out the derivative of the implicit functions. So 2x plus 3y equal to sin x, so डायरेक्टली हम क्या करेंगे ना, डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3y प्लस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ sin x। तो 2x का 2 इज द कांस्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस 3 इज द कांस्टेंट बाहर आ गया, dy by dx इज इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। अभी हमको क्या करना है, dy by dx को एक साइड में रखना है और बाकी को उधर में रखना है, तो 2 इधर में था तो 2 चला गया इधर, तो 3 dy by dx equal to cos x minus y, then dy by dx will be cos x minus 2 divided by 3, that will be our answer. Clear? Question number 2 is your homework. क्वेश्चन नंबर 3 में आता है ax plus by square equal to cos y, so again implicit function, differentiate with respect to x we have derivative ax plus derivative by square is equal to derivative cos y, a is the constant बाहर आ गया, derivative of x is 1 plus b is the constant बाहर आ गया, y square का derivative 2y, but here y is there, मतलब chain rule that is 2y into dy by dx, that is equal to cos y का minus sin y as we know, but since y is there, chain rule that is dy by dx। अभी dy by dx के टर्म को एक साइड रखेंगे, बाकी को उधर रहेंगे, तो ये वाला इधर आ गया, तो प्लस साइन वाई मतलब 2y प्लस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1, ए इधर प्लस था, इधर जाने से माइनस, तो 2by प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ए, देन डी वाई बाई डी एक्स विल बी ये जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज माइनस ए बाई 2by प्लस साइन वाई, एंड दैट विल बी द आंसर, ओके, वेरी नाइस। नाउ कमिंग बैक टू द 4 नंबर क्वेश्चन, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई कर सकते हो आप लोग, डेरिवेटिव एक्स वाई प्लस डेरिवेटिव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव 10x प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई। यहाँ पे एक्स वाई दैट इज प्रोडक्ट रूल, ऑब्वियसली एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल मतलब फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, दैट इज एक्स इंटू डी बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 2y इंटू डी बाई डी एक्स, चेन रूल, वाई इज देयर, 10x तो x के फॉर्मेट में है, तो सेक्स पर एक्स डायरेक्टली यहाँ पे डी बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे अभी डी बाई डी एक्स को एक साइड में ले आएंगे और बाकी को इधर लेके डिवाइड कर देंगे, विल गेट डी बाई डी एक्स इक्वल टू सेक्स पर एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1, ओके, सॉल्व करेंगे आप लोग खुद ही, मैंने ट्रिक बता दिया, आप लोग अभी आराम से कर सकते हो। 5-6 इज फॉर यू होमवर्क। 7 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई is equal to pi, so differentiate with respect to x we have derivative of sin square y plus derivative of cos xy is equal to derivative of pi, pi तो is a constant, that means डेरिवेटिव इज 0, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई है मतलब साइन वाई का होल स्क्वायर, तो डी ऑफ साइन वाई का होल स्क्वायर बाई डी साइन वाई, अभी डी साइन वाई यहाँ पे वाई है, एक्स नहीं कर सकते, तो डी वाई बाई डी वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स, तीनों में चेन रूल। कॉस एक्स वाई को कैसे करेंगे, डी कॉस एक्स वाई बाई डी एक्स वाई, और एक्स वाई को एक्स मतलब डी एक्स वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे 2 साइन वाई
साइन वाई का कॉस वाई, तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई डी एक्स प्लस कॉस वाई का माइनस साइन एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स वाई फिर से पुट होगा, एक्स इंटू डेरिवेटिव वाई दैट इज एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव एक्स दैट इज 1, मैंने डायरेक्टली किया दैट इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दैट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2i, साइन 2x दैट इज साइन 2i इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, मतलब उधर हमने ले लिया, मतलब डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में रख के राइट साइड में वाई साइन एक्स वाई कर लिया, देन डी वाई बाई डी एक्स विल बी गिवन बाय कॉमन लेके, सो साइन एक्स वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2i माइनस एक्स साइन एक्स वाई एंड दैट विल बी द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू, योर होमवर्क। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में अभी से 9 नंबर के जितना भी क्वेश्चन है थोड़ा याद लगाओ, तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वैसे कुछ कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा पुट हमको करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, हम ज़्यादातर में क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू टेन थीटा ही पुट करते हैं। क्यों पुट करते हैं, क्योंकि हाँ हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक है। और एक फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, और एक फॉर्मूला लिखता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू tan 3 थीटा, ठीक है। सो दीज आर द फॉर्मूलाज एक्चुअली, इसके फॉर्मेट में हमको सजाना है, इसीलिए हम वहाँ पे कुछ पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कौन सा फॉर्मेट में आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पहला 2 tan थीटा, अगर मैं x की जगह में tan थीटा पुट करता हूँ तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट विल बिकम sin 2 थीटा, और यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन इनवर्स साइन सम वैल्यू दैट विल बिकम दैट वैल्यू, तो पुट x इक्वल टू tan थीटा देन थीटा विल बी tan इनवर्स x ऑब्वियसली। अभी वहाँ पे पुट करेंगे तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड दैट वैल्यू विल डायरेक्टली बिकम sin 2 थीटा, तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा, साइन इनवर्स sin थीटा विल बी कैंसल आउट दैट विल बिकम 2 थीटा। 2 थीटा, थीटा का वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पे tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x, हमको tan इनवर्स का वैल्यू पता था, डेरिवेटिव पता था, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो गया। जस्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव dy बाई dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स x, 2 इज द कांस्टेंट, बाहर आ गया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव दैट इज 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx विल बी गिवन बाय 2 बाई 1 प्लस x स्क्वायर एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू चूज। ओके, यहाँ पे देखो tan इनवर्स 3x बाई माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो हम थोड़ा सा याद लगाएंगे, अगर x के जगह में हम tan थीटा पुट कर रहे हैं तो इट विल बी बिकम 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा एंड दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा। तो जस्ट पुट x इक्वल टू tan थीटा देन थीटा विल बी tan इनवर्स, इसको हमको लास्ट में मतलब यूज करना था, तो y इक्वल टू tan इनवर्स दिस वन, तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट आवर tan 3 थीटा, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan विल बी कैंसिल आउट, इट विल बिकम 3 थीटा, तो y इक्वल टू 3 थीटा, थीटा का वैल्यू हमने निकाला है tan इनवर्स, तो 3 tan इनवर्स x, यहाँ पे जैसे 2 tan इनवर्स x निकला था, यहाँ पे कितना निकला 3 tan इनवर्स x, जस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव दैट इज 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, सो इट विल बिकम 3 बाई 1 प्लस x स्क्वायर एंड दैट विल बी द आंसर। ओके, 11 नंबर फॉर यू, योर होमवर्क। अभी आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने बोला था आप लोगों को, अगर यहाँ पे हम tan पुट करें तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो अगर साइन का वैल्यू पुट करते तो ज़्यादा होता, साइन इनवर्स साइन कट जाता, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है cos के लिए होगा, तो cos को हम साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम लिख लेंगे जो कॉन्सेप्ट है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस पुट x इक्वल टू tan थीटा देन थीटा विल बी tan इनवर्स x, इसको हमको लास्ट में पुट करना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट विल बिकम साइन इनवर्स cos 2 थीटा, लेकिन साइन इनवर्स साइन होता तो वो कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पे cos आ जा रहा है, तो cos को हम cos 2 थीटा को हम साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैं अगर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कर रहा हूँ तो मुझे पता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा विल बी cos थीटा, तो cos 2 थीटा की जगह हमने क्या कर दिया साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट
वो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव भी रहेगा। तो साइन, तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 था, साइन इनवर्स साइन विल बी कैंसिल आउट, सो दैट विल बिकम पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा के जगह में कितना हो गया, tan इनवर्स है, तो पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू पाई बाई 2 इज द कांस्टेंट, 0 2 इज द कांस्टेंट, बाहर आ गया, tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 0 माइनस 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, so dy by dx will be given by minus 2 by 1 plus x square। 13 number is for you homework। 14 number में आता है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x होल इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तुम लोग बोलोगे सर tan इनवर्स पुट करने से क्या होगा, तो अगर यहाँ पे मैं tan थीटा पुट करूँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा उसका कुछ वैल्यू नहीं आ रहा, तो किसका वैल्यू आएगा, मुझे साइन इनवर्स है, मुझे साइन ही करना है, मुझे ऐसा मतलब जैसे साइन थीटा होगा वो कट जाएगा जैसे, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे कितना पुट किया, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, क्यों पुट किया देखो चेक भी करना पड़ेगा हमको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ऑफ कॉस थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा आराम से, ठीक है, क्योंकि हमको पता है साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स से साइन और साइन कट जाएगा, बस 2 थीटा रहेगा, तो कैसे होगा, y इक्वल टू साइन थीटा देन थीटा, इसको हमको लास्ट में पुट करना है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर इज कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइंस कैंसिल आउट, दैट विल बिकम 2 थीटा, सो y इक्वल टू 2 थीटा एंड y इक्वल टू थीटा के जगह हमने कितना पुट कर देंगे, साइन इनवर्स है, तो y विल बी 2 साइन इनवर्स x, तो बस इतना निकल गया, जस्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, we have y equal to 2 sin inverse x, तो differentiate with respect to x we have dy by dx equal to 2 into sin inverse x का what derivative, and sin inverse x का derivative is 1 minus x square का root over, that will become dy by dx equal to 2 by 1 minus x square का root over, and that will be the answer। clear? Come back to the last question, that is 15 number question, very important question actually। sin inverse 1 by 2 x square minus 1, तो 2 x square minus 1 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास एक फॉर्मूला था सेक इनवर्स था, यहाँ पे सेक इनवर्स मुझे यहाँ पे सेक करना है, ठीक है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला था बच्चे 2 साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा, कुछ फॉर्मूला है कि नहीं, ये वाला ट्रिगोनोमेट्री का मैंने बोला था आप लोगों को, ट्रिगोनोमेट्री इज वन मच मोर इम्पोर्टेंट, वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में हर जगह में यूज होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कॉस 2 थीटा, तो अगर मैं यहाँ पे cos थीटा पुट करूँ तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज cos 2 थीटा, 1 बाई cos 2 थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो सेक इनवर्स सेक कट जाएगा और 2 थीटा में निकल जाएगा, तो x इक्वल टू cos थीटा देन थीटा विल बी cos इनवर्स x। हमेशा आप लोग नहीं बोल सकते सर आपने तो tan थीटा बोला था, तो यहाँ पे कुछ tan थीटा पुट करने से कुछ वैल्यू भी निकल रहा होगा, खाली पुट करने से भी कुछ फायदा नहीं है, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट विल बिकम cos 2 थीटा, तो 1 बाई cos 2 थीटा, 1 बाई cos विल बी सेक थीटा, तो सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, तो सेक इनवर्स सेक विल बी कैंसिल आउट दैट इज 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2 थीटा एंड इन प्लेस ऑफ थीटा विल पुट cos इनवर्स x, तो इट विल बिकम 2 cos इनवर्स x, तो y इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। नाउ इतना निकल गया, बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव dy बाई dx इक्वल टू 2 बाहर आ गया, cos इनवर्स x का रूट ओवर, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव दैट विल बिकम 1 minus 1 by 1 minus x square, so combinedly we'll get lastly dy by dx equal to minus 2 by 1 minus x square का root over, and that will be the answer। okay, so this conclude your 5.3 also very nicely। okay, so practice nicely, okay, all the questions from NCERT and related questions from other books also, and in the next content we will discuss about the derivative of any other functions। okay, so till then take care all of you, keep studying all of you, thank you all।